Come to chapter number 2, time value of money. So we are going to learn simple interest, compound interest, effective rate of interest, present value calculation, present value, future value, annuity. Okay. The only difference is in this exam, those 4 options will not be there, which helped you to guess that yes, this may be the right answer. Now you don't have the option. So first question is, what is the meaning of time value of money? Meaning of time value of money. Time value of money means 1 rupee today is more valuable than 1 rupee tomorrow. Value of 1 rupee today is more than 1 rupee received tomorrow or after some time period. The reason is, if you have 1 rupee today and if you have 1 rupee after 1 year, this is let us say year 0 or today, this is after 1 year, which is more valuable? This is more valuable. Okay. Then the question is, why it is more valuable? Because there is an opportunity cost. Because there is an opportunity cost. 1 rupee can be reinvested, okay, for 1 year. And interest rate is suppose 10%. So what will be the value of rupee 1 after 1 year? Rupee 1 after 1 year will be 1.10. So this 1 rupee after 1 year can become 1.10. Is it right? So that is why early cash flow is more valuable than later cash flow. 100 रुपया आज और 100 रुपया एक साल बाद. Which is more valuable? 100 rupees today is more valuable than 100 rupees after a year. We'll discuss one by one. एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि क्या इसमें परचेजिंग पावर का कोई रोल नहीं है, तो उसके लिए नीचे एक टेबल देखेंगे पहले. रीजंस फॉर टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी. Time value of money is basically the interest, okay, the compensation that one gets for parting with his investment. So what are the 4 important reasons money has time value? Why interest is charged? Okay, one is we discussed just now. First I will write investment opportunity cost or investment opportunity. Right. Second reason is we'll discuss is risk. Third reason is inflation, purchasing power. And fourth is preference for present consumption. Preference for, आपकी बुक में लिखा हुआ है, if you don't want to write, don't write. It's okay. Preference for present consumption. These are the 4 reasons why money has time value of money. Why every rupee is valuable today as compared to tomorrow. तो पहले तो हमने ये अभी एक देखा एक example. If there are 2 friends, one says you give me a loan of 100 rupees, I'll return 100 rupees back after a year. So will the other friend agree? No, he will not. He will say that I can deposit in a risk-free investment. What is a risk-free investment? Say bank deposit, FD with a bank. You can earn 6% interest for a year. So you can easily get 6 rupees after a year and your money will become 106.
Your friend is telling you that no, I'll also give you 106 rupees. Still will you agree? थोड़ी देर के नेगोशिएशन के बाद उसने बोला कि मैं भी चलो तुम्हें जाओ 106 रुपये देता हूँ, अब तो दे दो, अब तो दे दो 100 रुपये, मैं भी दे रहा हूँ तुम्हें 106 रुपये। तो तुम बोल रहे हो कि नहीं, तुम्हारे में और बैंक में फ़र्क है। एक साल के बाद मैं बैंक के पास जाऊंगा, एफडी रिसीट दिखाऊंगा, बैंक मुझे 106 रुपये में वापस कर देगी। आफ्टर 1 year I'll go to bank, bank will return me 106 rupees. After 1 year I have to find where you are. You may or may not be available. You may refuse to recognize me only. You may refuse to return my money back also. Is it right? So there is a risk involved. So then your friend says, okay, I'll give you 1 rupee more for the risk that you are taking. So 107. You said no. Inflation in India is so high. After 1 year, the same goods and service which cost me 100 today will cost me 110. 10% इन्फ्लेशन इंडिया में। आप मुझे 107 देंगे, उल्टा नुकसान मुझे ही होगा। बिकॉज जब मैं 1 साल बाद जाऊंगा मार्केट में वही टमाटर, वही कद्दू, वही भिंडी खरीदने, तो 110 रुपया हो चुका है उसकी प्राइस। तो और 3 रुपया मुझे अपनी जेब से डाल के आई विल गेट द सेम थिंग। इज इट राइट? मुझे नहीं देना लोन। तो आपका दोस्त बोल रहा ठीक है, एक काम करो और 4 रुपए लो। दैट इज फॉर इन्फ्लेशन। अब खुश 111 हो गए, इन्फ्लेशन को हमने क्रॉस कर दिया। तो आप बोल रहे हैं नहीं, अभी भी नहीं मान रहे हो। क्यों? आप बोल रहे हो कि मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, मुझे अभी जाकर मार्केट में चॉकलेट खानी है, आइसक्रीम खानी है, ठीक है, वड़ा पाव खाना है, सलमान खान की मूवी देखनी है। अगर मैंने 100 रुपये तुम्हें दे दिया तो मेरा क्या होगा? आई हैव टू वेट फॉर 1 year टू ईट चॉकलेट, आइसक्रीम एंड सलमान। नो, देयर इज अ पेन इन्वॉल्व इन सैक्रिफाइसिंग। 1 रुपया और, ये लो पेन की कीमत। So 112. फाइनली दे नेगोशिएट 112। तो 100 रुपये की जगह 1 साल के बाद आपको 112 देगा। सो दिस कवर्स 6 rupees फॉर रिस्क फ्री रिटर्न, 1 rupee फॉर रिस्क, 4 rupees फॉर इन्फ्लेशन एंड 1 rupee फॉर the preference for present consumption. That is the pain involved in sacrificing. So few questions for you quickly. If you borrow from a bank or if you borrow from a money lender, where do you pay high rate of interest? High, because risk is higher. Is it right? If you invest in debenture of a company or if you invest in equity share of a company, where do you expect a higher rate of return? Equity share, because risk is higher. That is why you will find investor will expect a higher rate of return in case of equity share. If you invest in private sector debenture issued by a private sector company, investment in private sector company debenture, and if you invest in a government debenture, invest in public sector PSU debenture, where would you expect a higher rate of interest? Higher rate of interest. तो इनकी इंटरेस्ट रेट आप देखेंगे पीएसयू के डिबेंचर से 1-2% ज़्यादा ही होती है। Otherwise, investor would prefer PSU debenture only. Where is high rate of interest? In India or in Japan? India, Japan. In India, inflation rate is 11%, 10 or 11%. Japan में inflation rate 2 or 3% है. This is inflation rate. So where is higher interest rate? India has high interest rate. Why? Because inflation is high. Higher inflation means that country will have higher interest rate also. Is it right?
तो ये सब एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझ में आ गया क्यों इक्विटी शेयर का रिटर्न ज़्यादा होता है, क्यों कॉर्पोरेट डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, क्यों मनी लेंडर का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, क्यों इंडिया में इन्फ्लेशन रेट की वजह से इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, तो एक्चुअली यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, यू आर एक्चुअली लूजिंग, यू आर एक्चुअली लूजिंग। 100 रुपये की प्रोडक्ट अगर 110 में बिकती है एक साल बाद, और 100 रुपये इन्वेस्ट करके आपको 107 मिलता है एक साल बाद, तो आप गेन कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं? यू आर एक्चुअली लूजिंग, बिकॉज यू कैन नॉट बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर 1 year. So therefore the interest rate has to be more than the inflation rate, so that there is some positive return. Is it right? अभी पैराग्राफ 3 पे आ जाएंगे. Why knowledge of time value of money is important? जल्दी से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर देना, ठीक है? अब आप सीपीटी पास होकर आए, मतलब थोड़ी बहुत तो फॉर्मूला की जानकारी है ही, एकदम जीरो तो नहीं है. एक दिन आपने लॉटरी में 1 लाख रुपए जीत लिया, ठीक है? अब आप सोचिए कि इसका क्या करें. बैंक में डिपॉजिट करने चल पड़े. तो आपने पहले एसबीआई के काउंटर में गए, बोले मैनेजर साहब ये इंटरेस्ट रेट क्या है, मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, डिपॉजिट करना है. तो एसबीआई का मैनेजर बोला, अरे आओ बैठो, ये लो चाय पियो, आई विल गिव यू 9.5% पर एनम इंटरेस्ट रेट, कंपाउंडेड, हाफ ईयरली. तो आप सोचे कि आईसीआईसीआई वाले से भी पूछ लेना चाहिए, तो आप इसके काउंटर में भी चले गए. ये बोला, अरे एसबीआई वाले चोर हैं, आई विल गिव यू 9.25% पर एनम इंटरेस्ट रेट, बट कंपाउंडेड क्वार्टरली, साल में 4 बार इंटरेस्ट पे करेंगे. ये तो आपको क्या 2 बार पे करेंगे, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन है, जल्दी से 10 सेकंड में जवाब देना है कि वेयर वुड यू इन्वेस्ट योर मनी? आईसीआईसीआई, एसबीआई? इसका जवाब जिसने सही दे दिया समझ गया व्हाई द नॉलेज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नीडेड. तो वोटिंग करा लेते हैं, जहां ज्यादा वोट पड़ेंगे वो सही आंसर. तो एसबीआई वाले पहले पब्लिक हाथ उठाए जिनको लगता है एसबीआई में इन्वेस्ट करना चाहिए. अरे वाह, है 10, 20, 30 लोग. और जिनको लगता है आईसीआईसीआई में इन्वेस्ट करना चाहिए, वैसी भी जनता जरा हाथ उठाओ. वाह, तो ज़्यादातर वोट आईसीआईसीआई को मिले हैं. तो क्या ये आंसर सही है? इसके लिए पहले हमें एक छोटा सा कैलकुलेशन करना होगा. We will find out the future value. 1 लाख रुपया लॉटरी जीती थी ना आपने, तो 9.5% से अगर हम 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, जरा देखो. 1 लाख इंटू 1 प्लस 0.095 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 2. तो जरा कैलकुलेटर पे पहले 0.095 डिवाइड बाई 2 करो, प्लस 1 करो, डोंट टॉक, इंटू इक्वल टू प्रेस करो. इंटू इक्वल टू प्रेस करने से स्क्वायर हो जाएगा, फिर इंटू 1 लाख करो. अब जरा बताओ फाइनल आंसर कितना आया? 725 अप्रोक्सीमेटली 726. ओके, ठीक है, दैट इज ओके. यहाँ पर भी क्या करो, 1 लाख इंटू 1 प्लस 0.0925, इसको 4 से डिवाइड करो. क्वार्टरली है, हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और साल में 4 बार होगा कैलकुलेशन. तो ये आंसर आपका आ रहा है 1,09,575. दिस इज हायर. द करेक्ट आंसर इज SBI.
दैट इज वाई आई सेड द नॉलेज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नीडेड। नहीं तो जिस तरह इस क्लास में 80-90% जनता गलत जवाब दे रही है, ऐसी लाइफ में गलत डिसीजन लेते रहेंगे। तो जिन्होंने आईसीआईसीआई बैंक जवाब दिया, आज बाहर निकलना, रास्ते में कोई कुआं देखे कूद जाना ना। क्या फायदा फिर सीए करके अगर आप आईसीआईसीआई में इन्वेस्ट करेंगे तो। इसलिए नॉलेज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नीडेड। ओके, एक और एग्जांपल देखिए। ईयर 0 में हमने इन्वेस्ट किया 20 करोड़ रुपीस। ईयर 1, 2, 3, 4, 5 इनकम जनरेटेड 3, 4, 8, 12, 3 टोटल। जरा टोटल करके बताएंगे कितना आ रहा है? 30। इज इट 30 करोड़? So the question is, will you invest in this project? So कुछ स्टूडेंट सोच रहे वाह बहुत अच्छा है, 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो वी शुड इन्वेस्ट, यस और नो? बता रहे आप बोलो सही है कि नहीं? इन्वेस्ट करोगे ना? नहीं करेंगे? नहीं करेंगे या अभी हम डिसीजन लेने के लिए काबिल नहीं है अभी? हाँ, नाउ वी डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन, वी कांट से यस ऑल्सो, वी कांट से नो ऑल्सो. So therefore these are not comparable figures. These are not comparable figures because this 20 you invested today in year 0, and in year 1 you got 3, in year 2 you got 4, in year 3 you got 8, in year 4 you got 12, in year 5 you got 3. Cash flows at different point of time cannot be compared directly. ये आउटफ्लो था. कैश फ्लोज एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम कैन नॉट बी कंपेयर्ड डायरेक्टली, सो यू हैव टू ब्रिंग देम एट द सेम टाइम प्लेटफॉर्म. इज इट राइट? यानी सेम टाइम प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना है इनको पहले. तो अभी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, कोई भी नंबर एक दूसरे के साथ अभी कंपेरेबल ही नहीं है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी. इनकी प्रेजेंट वैल्यू, इस 3 की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इस 4 की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे. अभी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, सिर्फ समझने के लिए. इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, फिर यहां पर इनको क्या करेंगे, टोटल करेंगे, इसका सम निकालेंगे. इफ द सम इज ग्रेटर देन 20 देन योर आंसर विल बी एक्सेप्ट. इफ सम इज लेस देन 20 देन रिजेक्ट. सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 एक्सेप्ट. इक्वल टू है तो भी आपका डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल गया आपको, क्योंकि आप डिस्काउंटिंग कर रहे हैं ना. सो यू गॉट योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. सो ग्रेटर देन और इक्वल टू भी आया तो एक्सेप्ट करेंगे, लेस देन आया तो रिजेक्ट. तो अगर आपको ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन नहीं आएगा तो फिर आप ये डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं. तो फिर डिसीजन ले सकते हैं नहीं. So therefore, in order to compare two different projects, in order to compare two different cash flows at different point of time, the knowledge of time value of money is needed. Knowledge of time value of money is needed to take decision. Knowledge of time value of money is needed to take decision. पहले एग्जाम्पल में हमने डिसीजन लिया, ऊपर देखो यहाँ पे SBI. दूसरे एग्जाम्पल में हमने यहाँ डिसीजन लिया, हमने एक्चुअल नंबर लिखा नहीं, प्रेजेंट वैल्यू. अगर सम ग्रेटर देन 20 आएगा तो एक्सेप्ट, सम लेस देन 20 रिजेक्ट. तो ये पूरा जो आपका सिलेबस है, पूरा सिलेबस आईपीसी से लेकर फाइनल तक, एवरी चैप्टर इज डिपेंडेंट ऑन दिस वन चैप्टर, दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ money. Is it right? So now we'll continue tomorrow.